السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین حضرات، آج کا شو آغاز کرتے ہیں اوول آفس سے. چٹا چولا سیوے درزی نہیں بھولے دا ڈولے دی مرضی. چٹا چولا آیا بارو. بس کرو چٹا چولا. ملازم میرے سے کہیں دے شروع ہو. چٹا چولا سیوے درزی نہیں بھولے دا ڈولے دی مرضی. چٹا چولا. ایک منٹ ٹھہر، جب منگن والے لگ دے پیس. اچھا، پچھلے دنوں آپ نے ڈانس کیا تھا بیگم کے ساتھ. ہاں جی، ایک جگہ تو افتتاح کریں گے ایسی دو میں. پھر کیسا ڈانس رہا؟ لاؤ پوچھو تو بولو. کیوں جی، کیسے ڈانسر ہیں؟ بس ایسے ہی گزارا کر لیتے. انہوں نے تو کہنا ہی ہے پوری دنیا میں آپ کے ڈانس کو بھونڈا اور بدترین ڈانس کہا گیا. اچھا میری گل سنو، لوکاں دے نال نہ رل جایا کرو. برا تسی ساڈے ہو تے گلاں تسی لوکاں نہیں کردے ہو. آپ کا برا کیسے ہو گیا؟ پچھو آپاں بھی سارے راوی دے نہیں. اچھا جی، ایک برطانوی سنگر نے گانا گایا ہے. ایک تو میں سنگراں تو بڑا تنگ آ، اے ساڈے والے منوس بھی گاندے پھردے نے. ہاں جی، وہ بھی کوئی آپ کے ساتھ کوئی حرکت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اور سنوپ ڈاگ جس نے آپ کو باقاعدہ شوٹ کیا گانے میں. لیکن یہ جو روزن تھال ہے نا، اس نے بڑے ڈیسنٹ طریقے سے بیگم صاحبہ سے اپیل کی ہے کہ امریکہ کو نجات دلاؤ اپنے شوہر سے. وہ بیچاری آپ نجات حاصل کرے گی تو امریکہ نے دعائے گی نا. دور دور بٹلر دیکھ رہے ساڑھے پریزیڈنٹ صاحب، ہاں جی، یہ سفیدی والا پیپا ہوتا ہے. اچھا جناب، میں بڑا کھلا ڈلا بندہ، میں کوئی اعتراض نہیں. سفیدی والا پیپا نہیں، آپ کو اعتراض نہیں ہوگا. سفیدی والے پیپے سے پوچھئے تہاڈا مسئلہ کی ہے، مینوں یہ دس. سر، آسکر کی تقریب میں موصوف پر جھکتی ہوئی جی، ہر جگہ جھکتے ہوتی ہے. جن کی جان کو میرل اسٹریپ روتی پھرتی ہے. اچھا جیڑی فنکار بڈھڑ ہو جاندی ہے نا، وہ میری جان نوں ہی روندی ہے. میرل اسٹریپ اتنی بڑی اداکارہ ہے کہ امریکہ نے ابھی تک اس لیول کی اداکارہ پیدا ہی نہیں کی. یہ پھر امریکہ نو پوچھو. یعنی آئرن لیڈی مارگریٹ تھیچر پہ کیا فلم تھی اور کیا شاندار پرفارمنس. پھر کریمر ورسز کریمر، اور پھر سوفیز چوائس. یعنی 3 آسکرز لے گئی اور تم اسے باتیں کر رہے. یہ سارا عملہ کدے پی ایس ایل تے گیا؟ چھٹی ہے کوئی؟ کیوں کوئی ملن والا نہیں آیا باہر؟ تو سر بزرگوار کافی دیر دے باہر بیٹھے ہیں اور بہت فضول گلاں کر رہے ہیں. کون بزرگوار نے؟ وہی جی میرل اسٹریپ صاحبہ جی. اوئے، میرا سوٹا لے گیا. اب بلا اس بڈھڑ نوں. میں لے کے آیا جناب علی. اچھا جوید، گل ود جاوے نا تو تم مین بچانا ہے پتر ہے. آؤ جی، آجو آؤ جناب. شکلوں تو لڑائی والی نہیں لگ رہی، شکلوں تو سنا نہیں لگ رہی. بیٹھو. ایسا لگتا ہے میری پھوپھی ہے. منہ تو سیدھا کرو، کئی لڑائی والی گل ہے کوئی؟ ویسے بھی کتنا شاندار گیٹ اپ ہے. واہ واہ واہ. اے ٹرمپ صاحب تھا جی. انہیں ایوارڈ لے لے. اس نے 3 ایوارڈز لیے ہیں. 3. میرل اسٹریپ میری موسٹ فیوریٹ ایکٹریس ہے. آپ کو میری کون سی فلم سب سے زیادہ پسند ہے؟ برجز آف میڈیسن کاؤنٹی. وہ تو جو میڈیسن بھیجتی سی جی. پھر اس کے بعد ہے آؤٹ آف افریقہ. وہ تو جو خالہ ہی نو کاٹتا ہوئے گا. انہیں حرکت ہی ایسی کی تینوں افریقہ جو کٹ دیتا ہے. اچھا جی، آپ کو ان سے اختلاف کیا ہے سب سے زیادہ؟ سر، میرا اختلاف صرف یہ ہے کہ یہ ہٹلر بننا چھوڑ دے. کیڑی حرکت میں ہٹلر والی کی تھی، میں دسو. یہ جو ہر چیز کو بلڈوز کرتے چلے جا رہے ہو، یہ ہٹلر ہی کرتا تھا اس طرح. انہیں تو قصور نہیں ہے نا، دی شکل بلڈوزر ورگی ہے. اچھا پریزیڈنٹ صاحب، آپ نے مجھے بلایا کیوں ہے؟ میں تانوں اس واسطے بلایا ہے کہ تسی میرے خلاف کیوں؟ اے تہاڈی وجہ نال سارے فنکار میرے خلاف ہو گئے نے. اے بندہ صرف تہاڈی وجہ نال میرے خلاف ہویا پیا ہے. میری وجہ سے کیوں؟ یہ تہاڈے منن والا ہے نا. میں ان کا بڑا فین ہوں، لیکن میں تمہارے خلاف تمہاری وجہ سے ہوں. اچھا میری کوئی چیز تو چنگی ہے کہ نہیں؟ کوئی چیز، ہاں، آپ کی ٹائی اچھی ہوتی ہے موسٹلی. آج کل نہیں، آج کل کھٹے میٹھے رنگوں کی ٹائیاں پہن رہے ہیں موسم. اے تو دیکھ لو کوئی اور چیز. آپ کی بیگم بھی اچھی ہے. میری گل سنو، یہ گل نہ کرنا. تسی سیدھا میری فیملی تے اٹیک کرتے پے ہو. یہ اٹیک پورے امریکہ کی ضرورت نہیں میری فیملی تے بارے گل کرے. اچھا، سوال پہ کر دیو. اینکر ہو گھر ہو گے. ادھر آؤ نا، ادھر آؤ. تہاڈی مہربانی. یا آؤ. میں پاگل ہاں. شکر ہے بچ کے آ گئے ہو. آرام سے بیٹھ جاؤ، کیوں برکس نکلوانا ہے اپنا؟ ہاں برکس کی ہے. اچھا، ان رسالوں کا تم نے کیا بگاڑ لیا ہے جن کے ٹائٹل پہ اب کیا کیا بتاؤں میں؟ تو تم تو بے شرم آدمی ہو. اس تہاڈی ریسرچ میری بیوی تے زیادہ ہے.
वो आज भी तुमसे ज्यादा पॉपुलर है। आपने इन कूड़ों को बताया नहीं कि मेरी कुल टोटल नॉमिनेशंस कितनी है? 19 नॉमिनेशंस हैं। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। नहीं नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन नॉमिनेट उसमें भी हुई इस बार तो नहीं मिला ना इनको। तो रिटायर हो गई हैं। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। तमीज ना गल करी मेरे नाल में ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਸਦਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ अच्छा रिटायर हो गए ना इन्हों दी मर्दाना आवाज हो गई। तू भी खुसरिया आराम ना भैया। ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? इन्होंने मैं ख्याल बदतमीजी च ऑस्कर मिले है। ਅਵਾਰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਹੈ। की कहना मैनू? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। तू मैनू दसना की है? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ। 1 मिनट की ठहर, तू मैंने गल कर पूरी। ਕੀ ਕਰ ਸਨੀ ਤੂੰ? वे तू की कहना मैनू? क्या कहना? मैं बड़ा तू बड़ा गल कर। मैं कहना वे चुप पावा दवा पड़े। तमीज करें आप। नहीं तू भी चुप कर, नहीं तू ये ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ, ਬੜਾ ਕੁੱਟ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਬਣੀ ਭੇਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ। ਓਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਾਰਡ ਵਧਾ ਓਏ। मैं तो कहना रिटायर तो हो गई, इन्हों ऐसे गार्ड ना रख ली। ਅਜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੂੰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਗੇਟ ਤੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜਨਾਬ। पाकिस्तान तो कुछ हुआ तो नहीं आ गया। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਿਧਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕਾਨੀ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋ। वो अच्छे खासे सेहतमंद है आजकल। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। फिल्म स्मार्ट क्यों नहीं कहते तुम? ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਕਿਧਰ ਹੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ? ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਇਹ ਨਿਕਲੇ। ਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਕੀ? ਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਖਜੂਰੇ ਜਾਇਆ। ਬਣਵਾਈਆ ਸੱਦ ਲੈ। ना जी होए ना होए कोई नागी फैमिली जो है। अच्छा जी, आपका गेटअप बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहीं रहते हैं आप? मैं नहीं आया 25 साल पहले। अच्छा, किस तरह आए थे? ये आलू पत्ते थे और कि मैं। अच्छा, ये आलू पत्ता पता है किसे कहते थे? ये एक एग्रीकल्चर की स्कीम थी और बहुत से लोग इससे मुस्तफीद हो चुके हैं। करते क्या है? हाँ जी, होटल मुलाजम आ ते नाल माए को लिखण पढ़ादा भी काम करना। अब मैनू मिलन क्यों आया? अब मैं तेन पुछण आया, तू अमरीका नाल सलूक की पे करना है? तेन शर्म नहीं आती? अच्छा वेखो, मैनू पुछण कौन आया है? भाई वो इस वक्त अमेरिकी नेशनल हो चुका है, उसकी दिलचस्पी है अमेरिका में। और इनको ग्लूकोज की बोतल लवाओ। अब भाई जी मेरे 1-2 सवालों का जवाब दे दो। मैं फिर फौत भी होना। पूछो जनाब। अब तेरा बिगाड़िया की है तार की ने वतन ने। अच्छा कपड़े तो नहीं लग रहा है इस तरह की गल करेगा। उसकी बात का जवाब दो। बुजुर्गो ओ असल जो तार की ने वतन है ना, ये साढ़े तो बड़ा बड़ा बल्डन ने। तेरू क्या आख्या कच दी कच्चा? की बात तो सुनो, कुछ समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? अब बाजी जी गल इन्नी है, आ जेड़ी तुहाडी इकानमी इनू चलेंदा ही तार की ने वतन पाए नु। 100% दुरुस्त का है। ये है कौन है नॉम चौंसकी का चिच्चड़? जब तारकी ने वतन को निकाल देंगे तो अमरीकी कर लेंगे ये काम। हम ये के कर लेंगे मका एडा सब का है। अच्छा मैं क्या पता नहीं मरन लगा है। बाजी जी एडी लो जिससे काम करदा को भला। यदि बड़ी सख्त ड्यूटी सर। क्या करता है? सुबह सुबह उठ के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का मुंह धोंदा है। डोनाल्ड ट्रंप। ऐसी गल पे करता है वो। अच्छा जरा क्लियर। मच्छर का नाजम नहीं बैठा। ये अपने इलाके का बॉडी बिल्डर है। अब फड़नी वीड़ी मेरे नाल ना काम खुसरी आ। तेनू आख्या सू बल्लो बंदे दा फल बन अजो कुछ लभे ही इनू पचा। चाचा जी दसो मैं की करा? ऐ होर तो होर ऐ रिफ्यूजी नवी बीमारी पै गई इत्थे। ओ की आंदे ने तैनू? ओ आदे ने कि साडे लिए दरवाजे खोलो। ते खोलो जाके ओ मरदे जे। पाकिस्तान जा फकरा मुल्क 30 लाख अफगानियां नु सांभी बैठा है, थानू की मौत पैंदी है? लो जी चाचा जी ने उठ के उन चपेड़ा भी मारनी है। अच्छा जी इस मसले का की हल करा चाचा जी दसो? हले बच्चा रिफ्यूजी पैदा ही ना कर। आहा, क्यों पंगे पा लेना मिडल ईस्ट चो? असल में तुहानू दस्सिया नहीं, ये मेरे दादे दी रूह है। ओ क्यों एडा जालम है तू? दादी कोलों पूछ बेटा, मैनू क्यों पूछना है? ये तो राइटर कौन है? एडे ना हसो तुसी। ये पूरी दुनिया च ना कुछ 600 नागी फैले ने। अच्छा हम जाना किवें? किराया तो लैके जाना जी? किस तरह जाओगे? आ चांदा दा प्या बल्लो, पर मेरी गल याद रखी, चंगा रिश्ते
ਅੱਛਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜ ਜੀ 20-25 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਪਿਆ वो कौन? वो सर आखिरी मुलाकात आई बैठी कहो तो अंदर सद लिए ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ वो जी अजीब पुरस्कार जिहा बंदा ना बंदी है खबरें की है ਉਹ ਕਿਤੇ वो ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ CIA ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਹਾਂ ਸੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਏ वाह 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 वाह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ अच्छा तुम उनकी नौकरी पे हो, मैं नहीं हूँ। ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ क्या खिलाओगे? ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਐਵੀਨਿਊ ਤੇ ਨਾ ਰੇੜੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਮੈਂ किस चीज की? ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ये गोलगप्पों का काम 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू से क्यों नहीं शुरू कर देते? ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ है एक फजूल सी जगह। अबे कमबख्त मारे, तुम्हारा अपना एड्रेस है 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। एवेन्यू। आओ आओ जनाब अली आओ आ जाओ आओ जनाब ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੈਠੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ CIA ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਉਤਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ और आफ्ताब साहब क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बस रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, मजे में है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को तो अब भी चला रहे हैं आप। एस्टेब्लिशमेंट तो कभी रिटायर नहीं होती, आपको तो पता है ना, हमारे यहाँ ना आपके यहाँ। अच्छा ये क्या चीज थोप दिया आपने अमरीकियों पे? ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਧਰ ਆਇਆ ਹੈ आफ्ताब साहब इस मैडनेस के पीछे भी एक मेथड है, एक वजह है। जाहिर है वजह के बगैर तो आप कुछ नहीं करते, और इसके पीछे तो बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसे चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं, चेक्स एंड बैलेंस तो बड़ा लाजवाब काम है, लेकिन उसकी वजह से हम सफर बहुत करते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि एट ए टाइम 5-6 हुकूमतें हैं हमारी। कांग्रेस कोई लॉ बनाती है तो व्हाइट हाउस उसे पॉकेट कर देता है, व्हाइट हाउस के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को सुप्रीम कोर्ट उड़ा देती है। तो ये उसके पास अथॉरिटी है ना, जुडिशियल रिव्यू में उड़ाती है। यार ये अपने बारे में गल बात हो रही है। नहीं ये मंडियों के भाव डिस्कस कर रहे हैं, तुमसे मुतालिक नहीं है। अच्छा कुछ जुगता नहीं करी दी नहीं मैं सीरियसली कह रहा हूं। परेशान बैठे हुए हैं CIA कुछ करना चाहे तो पेंटागन चिल्ला उठती है, और अगर पेंटागन खामोश हो जाए तो स्टेट डिपार्टमेंट को कुछ हो जाता है। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ इसका क्या मतलब है? बताते हैं। कुछ लोगों किसी से पूछ लो चुनाचे हमें चाहिए था एक मोम की नाक वाला प्रेसिडेंट, जिसकी नाक मोम की हो। और क्या है मेरी नक मोम दी है ये झूठ नहीं मैं मारता और ये मुहावरा है, अच्छा मुहावरा है ये तो कोई मतलब ही उसी के नहीं तुम बताते हैं यार, तुम सिर्फ सुनने की और समझने की कोशिश करो। ਅਸੀਂ ਉਹਨੀ ਦੇਰ थल्ले बह जाइए अच्छा जी फिर? चुनाचे हम इसे जिस पेपर पे कहते हैं साइन कर देता है, जिस बात से मना कर देते हैं मना हो जाता है। फिर तो वाकई आपको मोम की नाक मिल गई है। और काफी मोटी नाक है इस देखो मानक मोम लगा है मेरा। अब ड्रोन्स वाला मसला देख लें, कांग्रेस इजाजत मांगते तो उन्होंने शो डालना था, हमने डायरेक्ट इजाजत ले ली। और क्यों साइन कर दिए थे तुमने इस पर? अब भाई और आख्या ही मैं कर देते लेकिन पेंटागन ने जो खप डाली हुई है। और सर पेंटागन की खैर है, उसे हैंडल करने के तरीके आते हैं हमें। अब मैंने भी कोई एक अद्धा तरीका दसो भाई जी मिस्टर प्रेसिडेंट उस पर अमल आप ही ने करना है। और करना कदों है आप साइन कर चुके हैं हुजूर, कर चुके हैं। होएगा किसी $54 बिलियन का इजाफा किया हमने आर्मी बजट में। तुसी कीता है ना मैं तो नहीं ना साइन आपने किए हैं। तो कोई और इत्थे पढ़िया लिखा बंदा है और मेरे को कितने कितने सहन कराई जाते हैं 4-5 फैला दे मैं भी करा चुके। अच्छा ये जो आपने सौगात अमेरिका के सर पे थोप दी, बल्कि मैं समझता हूं पूरी दुनिया को ये जो तोहफा पेश किया है, इससे निजात कैसे हासिल होगी? वन वर्ड सर, वन वर्ड, इम्पीचमेंट। जब हमारे मकासद पूरे हो जाएंगे वी विल इम्पीच हिम। यस वो आगे से कह रहे हैं यस। तुम्हारी इम्पीचमेंट की बातें शुरू हो गई हैं अभी से। लेकिन इम्पीचमेंट का तो प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा है। भाईजान 25th अमेंडमेंट देखिए, उसमें एक और गुंजाइश निकल आई है। हाँ कांग्रेस भी निकाल सकती है आपको। ओए किन निकालन दी गल्लां पे आउंदियां ने कांग्रेस से दूर दी गल है, तुहानू मैं भी कट सकना वा। और क्यों बांदरी जइया तू गई नहीं अजे भाई जी बाहर निकलन दा राह केड़ा है, सारे गेट बंद होए पए नु। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो दिनों रात आज की फिल्म है दिलां दे सौदे, निहायत शानदार कंपोजिशन नजीर अली की और उतने ही जानदार लिरिक्स ख्वाजा परवेज के। आवाज का जादू जगाया मलका तरन्नुम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं मुगीरा अहमद।
ब्रावो ब्रावो। वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और आज की शख्सियत है ग्रेगरी येफिमोविच रास्पुटिन। एक 4-5 बंदे। ये बंदा तो एक ही है, लेकिन 4-5 लाख पर हावी था। क्यों सर, बड़ा पहलवान सी? नहीं, बड़ा शैतान सी। खैर, मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं रास्पुटिन से, जो तारीख के बदनाम तरीन, खतरनाक और भयानक तरीन कैरेक्टर्स में से एक था। यह रूसी नस्ल था। 21 जनवरी सन 1869 साइबेरिया के इलाके में पैदा हुआ और महज 47 साल की उम्र में आज ही के दिन, एग्जैक्टली आज से 100 साल पहले इसको कत्ल कर दिया गया। यानी 30 दिसंबर सन 1916 इसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो सारा से 100 साल तकरीबात मना रहे हैं। हम इसका यौम इबरत मना रहे हैं। वाह वाह। और सिर्फ एक शख्स का ही नहीं, हमारे यहाँ मेहमान और भी हैं, और वो है जार निकोलस और जारीना अलेक्जेंड्रा, जिन्हें बोल्शेविक रेवोल्यूशन के दौरान निशाने इबरत बना दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था 5 बच्चों के हमरा। हाँ जी, क्या हाल चाल है बादशाह, सलामत आपका? मैं ठीक ठाक भाई जी, तुसी सुनाओ ठीक हो? अच्छा, एक थोड़ी बड़ी बड़ी गल है, जेड़ा पहले मौत दस दिंदे हो ना, ये आखिर दी गल्लां होंदियां ने। यार, ये इस कदर जालिम और सफाक बादशाह था, जार्स का आखिरी चश्मो चराग। हालांकि अच्छे सच्चे जार पीटर द ग्रेट और कैथरीन द ग्रेट, ऐसे ऐसे बादशाह और मलका हो गुजरे हैं इसी खानदान से, लेकिन ये इतना बदतीनत और बदखसलत शख्स था। इसने निहत्ते मजदूरों पर फायरिंग करके 4000 मजदूरों को पलक झपकते मौत के घाट उतार दिया। इसके इंतहाई बेहुदा दौरे हुकूमत में 15,000 लोगों को कत्ल किया गया, 20,000 लोग जख्मी हुए और तकरीबन 40-45 हजार लोगों को मुल्क बदर किया गया। इसके क्रेडिट पर देखो क्या कुछ, और अल्लाह ताला ने इसे कैसी इबरतनाक सजा दी कि एक चिट्टा अनपढ़ शख्स, एक उजड़ शख्स जो अपने आप को प्रीस्ट कहता था, पादरी कहता था, और गुनाह की तलकीन करता था, गुनाह की तरगीब देता था कि जितने गुनाह करोगे उतना ही अच्छा है, ताकि मैं एक ही दफा तुम्हारा सारा गंद उठा के अपने सर ले लूं और तुम्हें जन्नत की तरफ भेज दूं। यह शख्स था ग्रेगरी रास्पुटिन, जिससे तारीख शैतान के नाम से, डेविल के नाम से याद करती है। यह शख्स इसके घर दाखिल हो गया क्योंकि उसका बेटा होमोफिलिया का मरीज था, एक बड़ी अजीब ब्लड की बीमारी जिसका इलाज किसी के पास नहीं था। इसने कोई हिप्नोटाइज करके उसे कुछ अजीबो गरीब, पता नहीं क्या, कोई इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, यानी आपसे कहें कि मैं तुम्हारे ऊपर जादू की एक चुटकी फेंक रहा हूं, इससे तुम 1 मिनट में ठीक हो जाओगे, और बंदा नफ्सियाती तौर पे अपने आप को ठीक ठीक महसूस करने लगे। इस जैसे जगलर्स और इस जैसे शोबदाबाज इस काम में महारत रखते हैं। इसने उस प्रिंस को, शहजादे को ठीक कर दिया। इन्होंने अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल दिए। ये उनका बाकायदा पीर बन बैठा, और जार निकोलस की सजा यह है कि तारीख आज भी इसकी बीवी को उसकी दाश्ता करार देती है। जे इन्हू बुलाना सी ते भरजाई थोड़ी मैं ना ही लेके आंदा। ये हमारी भरजाई नहीं है। आप तो मेरे बारे में ऐसी बातें ना करें, मैं ऐसी नहीं हूँ। सर जी देखो 100 साल बाद भी चिड़ी जी सची हो रही है। अच्छा भाई, तुम्हारा क्या हाल है? इस जालम दा बच्चा इन्हू एडा क्यों प्यार ना बुला रहे हो? ये वैसे अजीब इत्तेफाक है कि ये शख्स चिट्टा अनपढ़, और देखो हिप्नोटाइज कर लेता था, हर एक को हिप्नोटाइज कर लेता था। और कहते हैं कि इस शाही खानदान के जवाल की 2 मेजर रीजंस में से एक ये शख्स था, और दूसरी सर, दूसरी जार निकोलस का जुल्म और जबर। लेकिन ये शख्स देखें, ये कैसा गंदा और गलीज शख्स था कि इसने मजहब के नाम को बर्बाद किया, इसने सोशल फैब्रिक को उधेड़ कर रख दिया, और 47 साल की उम्र में कुत्ते की मौत मरा। यानी जिस हालत में ये मारा गया, इसको शाही खानदान के कुछ हमदर्द लोगों ने धोखे से एक तहखाने में बुलाया
और वहां पर इसको जहर पिलाई गई। अच्छा, ये ना सिर्फ जहर पी गया बल्कि जहर मिला हुआ खाना भी खा गया, फिर वहां से भागा। जहर खा के? जी, ये जहर खा के और तगड़ा हो गया। सर जहर सी के कुश्ता सी। फिर वहां पे इसको कमर में एक पिस्टल शॉट लगा, ये भागा, पीछे से फिर 2 फायर्स लगे, एक रीढ़ की हड्डी में और एक स्कल में। फिर मरिया? फिर नहीं मरा, फिर भी रोटी खाता रहा। ये दरिया नेवका है सेंट पीटर्सबर्ग में, जहां का ये वाकया। फिर इसको दरिया में फेंका गया, फिर भी नहीं मरे आप। 15 घंटे पड़ा रहा ये पानी में, और पानी क्या था, बर्फ थी वो, फिर भी बच गया। खुद दीवाना ला ले। और फेंकने वालों से गलती ये हुई, मैं समझता हूं, कि उन्होंने इसके साथ कोई पत्थर नहीं बांधा, इसकी लाश फ्लोट करने लग गई, तब जाके लोगों को पता चला और इसको निकाल लिया गया। साथ पत्थर बंधा होता ना, इसको कछुए ही खा जाते। वेख रावी दी गला कैसी याद ने। कहते हैं जब इसको निकाला गया तो इसका जिस्म गर्म था, और ये तब भी अपनी कनखियों से देखने की कोशिश कर रहा था कि किसने इसको निकाला। बड़ा ही मनहूस आदमी यार। तो उस वक्त इसकी आखिरी सांसें चल रही थी। अच्छा, मौरखीन कहते हैं कि अलेक्जेंड्रा इंतहाई कम अकल मलिका थी। इसकी क्या वजह? एक तो मैं इन मौरखीन से बहुत तंग हूँ, फजूल बकवास करते हैं। नहीं, तुम तो बहुत ज़हीन और फतीन थी। हाँ, तो इसमें और क्या शक है? देखो, अच्छा खासा तुम्हारा शौहर था, उसे छोड़कर इसके साथ, इस फजूल शख्स के साथ तुम्हारा अफेयर शुरू हो गया। अच्छा, तुम्हें इस पर कभी शक नहीं हुआ? नहीं, मैंने यकीन सी। नहीं तो फिर क्यों नहीं पकड़ा इसको? वो तो मेरा पीर बादशाह सी। मैं से अन्नी दे बच्चे दी नहीं खिदमत की है। वैसे शौहर भी कोई ना खूबसूरत नहीं था। नहीं, अच्छा खासा हैंडसम स्टाउट आदमी, और सिपा सालार रशियन फौजों का। अच्छा, सबसे बड़ी हिमाकत तो तुमने ये की कि जापान के साथ जंग वाला पंगा ले लिया। भाई जी, फिर मैं उन्होंने की आंदा कि सारे छेड़खानियां करते रहो, रशिया बड़ा बड़ा मुल्क सी। बस फिर आपने मजा ले लिया ना। एक तो आपने अपने आप को उधर एंगेज कर लिया, रही सही कसर वर्ल्ड वॉर ने निकाल दी। आप मेरे साथ भी कोई बात करेंगे या नहीं? हाय क्या कर? इन्हें भी चक्कर देता है। हाय, मैं तो इसमें लानत भी नहीं भेजी थी। क्यों भाई? झूठ बोल रही है। हाय। अच्छा, बादशाह सलामत के साथ तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजरी? ये कहाँ का फरिश्ता था, फजूल इंसान था ये। हर वक्त इसे मार धाड़ से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। क्यों भाई, हर वक्त मार धाड़? नहीं जी, अगर बादशाह मार धाड़ नहीं करेगा तो बादशाह होया है। शर्म करो, मलिका के सामने ये गुफ्तगू कर रहे हो तुम, बेशर्म इंसान। तो जो मलका कर रही हो दसा। ओ आइंदा बच्चा। सर वैसे मेरे नजदीक मलिका ज्यादा फजूल शख्सियत थी, क्योंकि इन्होंने अपने दौर में कभी कोई एक भी अच्छा मशवरा नहीं दिया। इसलिए कि कुंद ज़हन थी, हेडोनिस्टिक थी, तायुश पसंद थी, तवहम परस्त थी। और कोई फिक्र है तो भी बोल दो, ये तो भाई शुरू हो जाता है। अबे तू तो अपना मुंह बंद कर ले, चपड़गंजू। लो जी, शो हो रहा है, चपड़गंज हो जाना है। ये हमारा बड़ा दानिश्वर दोस्त है। बड़े देखे हैं ऐसे दानिश्वर, धक्के खाते फिरते हैं मेरे दरबार में। तो इसी दरबार में कत्ल किया गया था, तुम सबको गोलियों से भून दिया गया था, 5 बच्चों समेत। अच्छा बात सुनो जी, इंटरव्यू इत्मीनान से भी हो सकता है, तुम इतना डांटते क्यों? असल ते गोलियां इन्होंने मारिया ने, बच्चों ने मारी सी। मैंने तो उन्होंने अद्धा पौना घंटा चपेड़ा मारिया ने, उस बाद फैर मारे अन्नी दिया ने। सर ये पुराने लोग इतनी देर से क्यों मरते थे? एक तो सख्त जान होते थे, दूसरा असला नाकिस होता होगा। सही गल है सर, बरेटा का दौर तो नहीं ना होगा ਤੁਹਾਡੀ तरह। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि बरेटा 400 साल पहले बन चुकी थी। बरेटा 1526 में कायम हुई। 1526 कहाँ? इटली में। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰੇਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੂਫੀ ਵੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਦਿਨ ਰੈਪੋਟੀਨ लगता है। रेपोटिन नहीं, रास्पुटिन। रेस्पुटिन। और इस बदबख्त का कमाल ये था कि इसको बैरल्स के बैरल्स आप शराब में इसको डबो देते थे, ये तब भी आउट नहीं होता। और हाइट इसकी पता क्या थी? 6.5 फुट। 6.5 फुट तवील शैतान। अच्छा उन्होंने कोई सूट नहीं बनवाना। अच्छा जनाब, मलिका को आमतौर पे घुड़सवारी का शौक होता है, तीरंदाजी का, मुताले का, गार्डनिंग का, फूल इकट्ठे करने का।
इसको पता क्या शौक था? क्या सर? ये बर्तन बनाया करती थी। बड़ी कूड़ औरत है, मैं कमियारें चुहे आई है, सारे दिन बांडे बनाती रहती है। लोग की बात समझते थे, मेरे को मैं ही समझते थे। बाहर लैंड लगी थी कि मलका दो हांडियां दी तीन बनी है कि नहीं बनी? दुश्मन मुल्क में उन्होंने पांडिया का ऑर्डर दे। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहता हूँ रास्पुटिन, तुमसे गलीज बू क्यों आती रहती थी हर वक्त? बकरियां दे विच सौंदा सी और वाकई इससे बकरों की बू आती थी। मशहूर इसने ये कर रखा था कि चूंकि जानवर भी अल्लाह की मखलूक है, मैं उनका इलाज भी करता हूं, तो गंदे अस्तबल में फजूल जगह पर पाया जाता था और कई दफा वहां सो भी जाता था। ये तो अच्छा खासा जानवर था। क्या जानते हो कि तुम्हें मरे हुए आज इस वक्त एज ऑफ नाउ पूरे 100 साल हो चुके हैं? जी हाँ, मैं जानता हूं, और इस वक्त मेरी रूह इधर ही मंडला रही है। हाँ, किधर मंडला रही है? मुझे तलाश करो, मैं अब भी तुम्हें करप्ट अफसरों और सियासतदानों के अंदर नजर आऊंगा। हाँ, ये वैसे ठीक कह रहा है। हर करप्ट और घटिया शख्स, हर नंगे आदमियत, उसके अंदर रास्पुटिन की छवि आपको नजर आएगी। इस जैसे बदबख्त थे जिनके बारे में डॉक्टर फौजिया सईद ने किताब लिखी थी, वर्किंग विद शार्क्स। सर ये जानवरों वाली हरकतें भी करता था? भाई ये जो स्ट्रीट में फिरती हैं फकीरनियां, कूड़ा इकट्ठा करने वाली, ये उन पर अटेम्प्ट्स करता था। और एक फकीरनी ने इसकी पसलियों में ऐसी किक लगाई थी कि इसे कई दिन अस्पताल में रहना पड़ा। इसका स्टमक बस्ट होते होते बचा। वो फकीरनी ब्रूस ली दी साली सी, उन्हें कौलियां नाल मारे है। उदों दा कर रहे हैं। फिर शाही नर्स पर अटेम्प्ट की इसने। वो मेरी खाला दी बेटी सी। तौबा भाई तौबा, बड़ा गंदा आदमी सी। आखिरी अटेम्प्ट पता नहीं किहदे ते कीती है? मेरे ते। ऐसा जादूगर दा बच्चा मैं 2.5-3 घंटे नचांदा रहा उसे। मैं फुल दे सामने सपनी बने आया सी। तुम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ से। वेलकम बैक जी। खबर है कि गुजरांवाला में बिल्ली गुम होने पर मालिक ने बैनर्स लगवा दिए, 50,000 रुपए इनाम का ऐलान। सर ये क्या किस्सा है? बिल्ली खो गई है उसकी, तो वो बेचारा तलाश कर रहा है उसकी। तो सर बिल्ली ना मिले तो बंदा इतना जज्बाती हो जाता है। कैलिफोर्निया में एक साहब ने $20,000 इनाम का ऐलान किया था बिल्ली खोने पर, और एक साहब का कुत्ता खो गया। उसने अपनी शादी की सालगिरह 1 हफ्ता एक्सटेंड कर ली। ये तो अपनी अपनी मोहब्बत है, अपना अपना एक ताल्लुक है पेट के साथ। सिंध की एक खबर पिछले दिनों बड़ी वायरल रही कि एक साहब का मुर्गा बीमार पड़ गया। जो ही वो सेहतमंद हुआ, इन्होंने एक बकरे का सदका दिया। और जब बकरा ज़िबा करने का अमल जारी था, उस वक्त मौसूफ ने मुर्गा अपनी गोद में बिठाया हुआ था और मुर्गे ने सिगरेट लाया। और जानवरों के साथ मोहब्बत आपको भी है? सारे जानवरों के साथ नहीं है। डफी जो गुआच जाए। डफी क्यों गुआच जाए? इन्होंने डफी गुआच गया, इन्होंने हाथी सदका ही देना जी। पर पालतू जानवर में कुत्ता है, बिल्ली है, हर तरह का जानवर। लोगों ने लिजर्ड पाली होती है, लोगों ने सांप पाले होते हैं। हमारी एक कोलीग है, टीवी शो होस्ट करती है, सिंगर भी है, राबी पीरजादा। जी जी, उसके पास 100 से ज्यादा सांप है। तो बेच दे भी नहीं। अब अमेरिका में देखें, एक नई दर्द सर है कि लोगों ने डेंजरस एनिमल्स पेट्स के तौर पे रखे हुए हैं। मतलब किसी ने चीता रखा हुआ है, किसी ने शेर रखा हुआ है। अमेरिका में ये जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह आपको पता है? लॉ एंड ऑर्डर है। ये एक दहशत की फिजा रहती है। लोग कहते हैं जी हम बच्चों को इस स्ट्रीट में जाने नहीं देंगे, कोई पता नहीं चीता किसी भी वक्त स्ट्रीट में आ जाए। फिर क्यों जी? चीते ने दूध लेने जाना है। फिर ऐसे ऐसे बड़े बुली कुत्ते हैं, ऐसे ऐसे खौफनाक गद्दी कुत्ते हैं, अलाबाया। ये कुत्ते घरों में रखने वाले नहीं है। मतलब है बुली कुत्ता तो खैर लड़ाई के लिए लोग रखते हैं, लेकिन वो इतना कद होता है उसका। जी जी सर, बब्बू चिट्टा होता है ना। एड्डा चौड़ा मुंह। और इसकी तो बाकायदा अयाल है। ये जो अलाबाया है, इसकी अयाल है मेन। लगता है थोड़ा सा छोटे साइज का शेर है, यानी भौंके ना तो शेर ही है। आप हैरान होंगे कि इस तरह का कुत्ता जैसे अलाबाया है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर चीतों को डराने के लिए रखा जाता है। कुत्ता जी, ये इतना खूनख्वार कुत्ता है। चीते अलाबाई को बड़ा डरते ने। अच्छा, चीते उन्हें वेख के भौंकण लग पैंदे, बल्कि अपना आईडी कार्ड बनते माइनस ही कुत्ते है।
چیتے اتوں لنگن نا تو گیٹ اپ چینج کر لیندے کی مطلب کئی چیتے خسرے بن جاندے نے ایک چیتا ڈھولکی کر لینا ارے یہ بڑا محبت کرنے والا کتا اللہ بھائی جی یہ ایک ون مین ڈاگ ہوتے ہیں, یہ ایک اپنے مالک سے محبت کرتا ہے, وفادار ہوتا ہے اس کا, نہ صرف اس کے ساتھ, اس کے خاندان کے ساتھ, اس کی پراپرٹی سے بڑی محبت کرتا ہے, لیکن ہر ایرے گہرے کے ساتھ نہیں. اور اس پر اگر حملہ کر دے نا, ریوڑ کے اوپر بھیڑیا چونکہ ایک نہیں ہوتا, بھیڑیا ہو گیا, گیدڑ ہو گئے, ہائیناز ہو گئے, کتے بھی, یہ پیکس کی شکل میں وہ ایک اعلان کرتا ہے اونچی ساری, 13-14 اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں. تو یہ اکیلا ان سب کا مقابلہ کرتے کرتے اپنی جان تک دے دیتا ہے, لیکن کسی نہ کسی طرح ڈریگ کرتا کرتا اس لڑائی کو ریوڑ کو گھر تک پہنچا دیتا ہے. ارے ایک ہی شے بیٹھی ہے. ہاں جی, آپ کون صاحب ہیں؟ سر میری بلی گم گئی ہے. اچھا, یہ جو گجرانوالے سے تشریف آپ لائے؟ جی میں حاضر ہوں. اچھا, گجرانوالہ کا نہ یہ لباس ہے, نہ یہ ٹائی ہے, نہ اینک ہے, اور نہ یہ رنگ ہے, اور بلی ہے دے خوف تو لوگ گئی ہے. اچھا جی, انہوں نے بینرز اور پوسٹرز لگا دیے ہیں کہ میں 50,000 روپے انعام دوں گا جو میری بلی تلاش کرے گا. اور بلی نے بھی سر پوسٹر لائے نے, انہوں نے کہا جیڑا منو یہ کو بچائے گا میں انہوں ₹1,00,000 دیا. سر میں نے اتنا پیار کیا بلی سے, اور بلی نے مجھ سے اتنا پیار کیا. تمہیں اور کوئی نہیں ملا پیار کرنے کے لیے؟ آپ نے 50,000 کی بلی لے لی, 20 روپے کا صابن کیوں نہیں لیا؟ اس جیسے نو دولتے جو ہوتے ہیں نا, خام خواہ. اب دیکھو بینر چھپواتا پھر رہا ہے, تو کیا بنتا ہے تم نے اتنی مہنگی بلی رکھی کیوں؟ آپ بلی رکھیں, آپ کی گمے تو پتا چلے. یہ میری بلی ہے, اچھا, مجھے جان سے بھی پیاری تھی. یہ جذباتی ٹھیک ہو رہا ہے, تمہیں واقعی محبت ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے نو دولتا ہے, ایسے خام خواہ شو آف کر رہا ہے. یہ تو اللہ کرے ان کی بلی گمے اور ان کو پتا چلے. آپ نے آخری بار اپنی بلی کو کہاں دیکھا تھا؟ بلی نے آخری بار انہوں ویکھیا بھی نہیں. میرے سے بے پناہ محبت کرتی تھی وہ, اور بے پناہ ڈرتی تھی. بات سنو, اگر بے پناہ محبت کرتی تھی تو پھر بھاگی کیوں؟ یہ تو تمہارا خیال ہے نا بھاگی ہے, وہ چوری ہوئی ہے. اور جن نے چوری کیتا ہے نا, بلی انہوں انہیاں دعاواں دے چولیاں چوک چوک کے کہتی میں تیرے بچے جی. اور جہو جی تیری پرسنالٹی ہے, تو کرلے رکھ, ازدہے رکھ, گنڈوہے رکھ, لنگور رکھ, وہ تو خیر تو رکھے ہونے نے. میں نے صبح صبح اٹھ کے اس کی طرف محبت سے دیکھنا, اور اس نے تھر تھر کانپنا. میں نے مارننگ واک کے لیے باہر نکلنا, انہیں اندروں کنڈی لا لینی. میں نے جھوٹ موٹ غصے سے اس کی طرف دیکھنا, انہیں 1-5 تے کال ملا لینی. کھان پین دا دھیان رکھنا سیں بہت زیادہ. بلی نے آندے ہیں کیسی پائے نا اپنے پانڈے لیدا کر. میں نے شام کو اسے سیر پہ لے کے جانا, اس نے ترسی نگاہوں سے لوگوں کو دیکھنا. اس کا کیا مطلب ہے یار؟ 2-4 انہوں نے لکھ کے لایا کہ ہیلپ می. اس نے وہ کاغذ پڑھے. میں نے اسے محبت سے بلانا شین, انہیں کو کہنا مروی. میں نے آفس سے اچانک گھر آنا, اور اس نے دیکھتے ہی کہنا امی بہو. اچھا, وہ چاری بڑی ڈر گئی تھی. انہیں کئی یاری انہوں باندر بان کے بھی دکھا. بلی نے احتیاط نال سے کتے دا فون رکھیا. اگر آپ کو وہ نہ ملی تو کیا کریں گے؟ مجھے نہ ملی تو میں خودکشی کر لوں گا. اگر مل گئی تو وہ کر لے گی. نظرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.